क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, देयर इज नो पॉइंट इन कंटिन्यूइंग। और अगर आपको लॉस हुआ है तो देन यू हैव टू थिंक इट ओवर, मे बी दैट the strategy which you have applied in the business is not working, maybe the product you are dealing with is not good, or maybe you are buying items at a very high rate. Reasons may be many. So all this you can decide. The most important decision in the business is all related to money. And when it comes to money, accountancy is the first thing which should come to your mind, because otherwise business can't speak on its own. You have to have the language of the business. So accountancy is known to be the lifeline. That is one. Second thing is, it is also known as the language of the business, because in books you are writing what is happening in the business. Okay, so I'll share the screen now. Okay. Just to discuss the points, I had thought of just making a PowerPoint. So this is your first chapter. I hope everybody is able to see that. Yes, ma'am. Okay. Yes, So ma'am. this is your first chapter, that is Introduction to Accounting. Okay. The first and foremost thing, as I was saying, whatever money you are investing in the business, right, it has to be recorded somewhere, because our human memory is very, very short. It cannot hold the number of information for a very long period of time. और ये शायद आपको पता भी होगा कि जो हम बिजनेस करते हैं नॉर्मली 1 साल बाद हम देखते हैं, कम से कम इतना टाइम दिया जाता है कि 1 साल बाद में आपको जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जो भी आपने पैसा लगाया है, उसका क्या हुआ, नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है. So it is from the bookkeeping and making report. This is the primary motto और primary job of accounting. आप क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो, और at the end of the year you will try to make the records, जिनको हम बोलते हैं, मैं कुछ अभी terminologies बोलूंगी, तो keep that in mind and get accustomed to those words, क्योंकि वो very frequently we use. शायद आज आपके लिए नए होंगे, तो no problem, you can go ahead and just listen. Maybe when I share this recording, you can read it again. I mean, you can listen to this again. तो फाइनेंशियल रिपोर्ट की जब हम बात करते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर वी मेक सम स्टेटमेंट्स which are known as financial statements. Financial statements, or we also call them as final accounts. Final account उनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि you wait for one whole year, और at the end of the year you try to find out कि कितना मेरी इनकम हुई है, कितना मेरे एक्सपेंसेस हुए हैं, और कितना मुझे प्रॉफिट या लॉस हुआ है. तो फाइनली यू मेक अ रिपोर्ट. दिस इज द बेसिक जॉब ऑफ अकाउंटेंसी. बट ये ना बहुत इट्स अ वेरी ओल्ड स्कूल कि हम जब ऐसे बोलते थे कि सिर्फ रिकॉर्डिंग में है, सिर्फ एक वो बही खाता लिखना है मुनीम जी के जैसे एक जगह बैठ के, तो ऐसा नहीं है. अकाउंटिंग हैज गॉट न्यू ओपनिंग्स आल्सो इन न्यू एरियाज लाइक फोरेंसिक अकाउंटिंग. फोरेंसिक अकाउंटिंग जैसे कहीं पर आपका कोई फ्रॉड हो गया, जो साइबर क्राइम है, तो इस तरह की चीजें. ई कॉमर्स, नाउ डेज यू नो दैट ऑनलाइन पेमेंट्स इज इन वो, आई मीन everywhere we are using digital payment. See, financial planning of any business or anywhere जहां पर भी मनी की बात आ रही है, वहां पे उसको कैसे प्लान करना है. Then even environmental accounting. Environmental accounting is something related with the, you know, it's an estimation. अगर जैसे आपकी कोई फैक्ट्री है या कोई आपने बिजनेस शुरू किया है which is polluting the environment, I'm just giving an example, pollute किया है, तो what will be the cost, the social cost of that damage? This will come under environmental accounting. So accounting is not limited to what we always feel कि business से ही related है. There are many more exciting areas nowadays, so you can think of your career as well. Okay, so and accountancy, we, as I said, because money, हम बोलते हैं विटामिन एम, जैसे हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए विटामिन चाहिए होते हैं ना, तो ऐसे ही बिजनेस को भी विटामिन एम की जरूरत होती है. विटामिन एम इज मनी. तो जहां मनी है वहां आपको अकाउंटेंसी मतलब आपको जरूरी है, बिकॉज यू नीड टू रिकॉर्ड. ठीक है, so it's the lifeline of the business, and second thing is it's the language of the business, क्योंकि business तो अपने आप में कुछ बोल नहीं सकता. ठीक है,
Okay. Now the very first thing which I am taking you to, that is the definition. उसके बाद मैं कुछ terms आपको बताऊंगी, and also the difference between bookkeeping and accounting, which is very important and invariably that comes in exams as well. So definition and what exactly the meaning of that definition. It says that it is the process of identifying. I have marked a few words in different color because these words have got a different meaning. Okay, so this is the process of identifying, measuring, recording, and communicating the required information relating to the economic event of an organization to the interested user. अगर मैं इसका सिर्फ मीनिंग बताऊं कि आपके बिजनेस में जो भी इकोनॉमिक इवेंट्स होती हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करना है, मेजर करना है, रिकॉर्ड करना है और कम्युनिकेट करना है. कम्युनिकेट किसको करना है? देयर आर सम इंटरेस्टेड यूजर्स. ठीक है, तो अभी मैं आपको आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टर्म ऑफ इट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस डेफिनेशन एज वेल. सो द फर्स्ट वन वाज द इकोनॉमिक इवेंट. अच्छा, आप बच्चों ने कुछ तो ये तो सुना होगा, ट्रांजैक्शन वर्ड हम बहुत बार बोलते हैं. दिस इज अ वेरी कॉमन वर्ड विच वी यूज, बट इन अकाउंटेंसी व्हाट डज एक्चुअली ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जो भी आपके बिजनेस में लेन देन हो रहा है व्हेन इट कम्स टू बिजनेस. अच्छा, बिफोर दैट आप मुझे कोई ये बताओ कि व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस व्हाट कम्स टू योर माइंड कि क्या होता क्या है बिजनेस में? It's an occupation. Buying and selling से हम प्रॉफिट कमाते हैं और अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं. हाँ, वेरी गुड. और कुछ हो सकता है इसमें? On a regular basis. On a regular basis. Very good, excellent. It has to be regular, then only it will be called as business. अच्छा, ये तो था जो आपने अभी बताया ना, बाइंग एंड सेलिंग. दिस इज वन टाइप ऑफ बिजनेस. आप जब बिजनेस में बिजनेस स्टडीज पढ़ोगे ना तो आप पढ़ोगे देयर आर डिफरेंट एक्टिविटीज. उसमें मैन्युफैक्चरिंग भी आता है. एक होता है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड, जो बाइंग एंड सेलिंग है ना, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग. ट्रेडिंग का मतलब होता है यू आर सिंपली बाइंग समथिंग विच इज रेडीमेड and you are selling it for a profit. Okay, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में क्या होता है, यू आर एक्चुअली मेकिंग दोज थिंग्स. जैसे मैं अगर सपोज मेरा गारमेंट का बिजनेस है तो मैं गारमेंट्स बना रही हूँ एंड देन आई एम सेलिंग इट. ठीक है. और एक होता है सर्विस इंडस्ट्री, वो आपने शायद सोशल साइंस में भी पढ़ा होगा. 3 टाइप ऑफ इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एंड थर्ड इज टर्शरी. तो वो ऐसा है, मैन्युफैक्चरिंग एवरीथिंग कम्स अंडर बिजनेस. तो जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं ना तो उसमें देयर आर मेनी थिंग्स आर हैपनिंग कि आप जैसे रॉ मटेरियल खरीदोगे. ठीक है, आपको एक बिजनेस सेटअप किया है तो यू हैव टू पे द रेंट, यू हैव टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल. आप यू आर यूजिंग वाटर, you have to pay the water bill. You will be having telephones, so you will be paying the telephone bill. You have to insure your all the items. You are selling, you have to pack those things. You will be employing so many people, you will be paying the salary. So these kind of, there are small activities which are there in the business, be it your manufacturing unit, be it your trading industry, or it is tertiary. तो भी है, लेकिन ये सब छोटी छोटी चीजें वहां होती रहती हैं. तो जो भी ऐसे अकरेंस हैं, whatever happening in the business and which lead to some kind of monetary exchange, सबको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन. यू कैन म्यूट योरसेल्फ बच्चे. ठीक है, जब आपको बोलना है देन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. आई हैव नॉट लॉक्ड यू, आई मीन आई हैव अलाउड एवरीबॉडी टू अनम्यूट योरसेल्फ. ठीक है, तो एनी अकरेंस और हैपनिंग इन द बिजनेस व्हिच कंसिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड व्हिच इज मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स. यहाँ एक दो चीजें, मतलब काफी सारी कुछ आप बोल सकते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमेशा हमेशा जब भी आप अकाउंटेंसी का कुछ भी काम करोगे, whenever you think of accountancy, वो चीजें हमेशा आपके दिमाग में रहनी चाहिए. सबसे पहली चीज, जब भी हम अकाउंटेंसी की बात करते हैं एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट रिकॉर्डिंग, रिमेंबर दैट यू रिकॉर्ड एवरीथिंग इन मनी टर्म्स. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 10 कंप्यूटर हैं
तो I will not write in my books of accounts, I will not write 10 computers. What I will write is I will convert that into money terms. ठीक है, that is our second topic. but ये है कि which is measurable, जो भी चीज आप measure कर सकते हो, जिसको भी quantify कर सकते हो, that all will be called as your transactions. ठीक है, तो there are two type of transaction, one is internal and external. internal transactions होती हैं जो कि आपके बिजनेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, आपको शायद एक आइडिया तो होगा रफली कि जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो सकता है, सेल्स डिपार्टमेंट या मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, तो देयर में भी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट, स्टोर होगा. तो अगर कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी इवेंट, इट इज विद इन द विंग्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको. सपोज यू हैव अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ओके, एंड यू आर मेकिंग से गारमेंट्स. तो गारमेंट्स बनाने के लिए आपको कपड़ा चाहिए, ठीक है, तो आपके पास में एक होगा परचेज डिपार्टमेंट और मे बी इट इज अ स्टोर. ठीक है, तो व्हेन यू आर बाइंग द रॉ मटेरियल, व्हिच मींस व्हेन यू आर बाइंग द फैब्रिक, इट विल बी आइदर विद द स्टोर और इट विल बी द परचेज डिपार्टमेंट. क्योंकि अलग अलग कंपनीज में अलग अलग डिपार्टमेंट्स का नाम रखते हैं, तो हो सकता है कि किसी का स्टोर और परचेज अलग अलग हो, किसी का हो सकता है कि परचेज एंड स्टोर में बी अ वन डिपार्टमेंट. तो आपने जो रॉ मटेरियल लेकर आया, दैट इज फैब्रिक, वो आपने रखा परचेज डिपार्टमेंट में. अभी प्रोडक्शन में जब जाना है, तो प्रोडक्शन करने के लिए दे नीड फैब्रिक, सो दे हैव टू टेक दिस फ्रॉम द परचेज डिपार्टमेंट. तो अब यहाँ पर क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही काम चल रहा है, आप किसी आउटसाइडर के साथ में कोई भी आपका लेना देना नहीं है. तो एनी इवेंट और एनी ट्रांजैक्शन विच इज विद इन दी एंटरप्राइज, विद इन दी बिजनेस. एक और एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे कि आपको सैलरी दी जाती है एम्प्लॉइज को, तो एम्प्लॉइज आर अ पार्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है, और अकाउंट्स डिपार्टमेंट से उनको सैलरी दी जा रही है. तो दिस इज अगेन, इट इज नथिंग टू डू विद समबडी हु इज आउटसाइडर. ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ इवेंट्स विल बी योर इंटरनल इकोनॉमिक इवेंट्स. फिर आता है एक्सटर्नल, एनीथिंग विच इज बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. तो उसमें से एक तो आप खुद हो और दूसरा कोई भी और हो सकता है. जैसे आपने बैंक में पैसा जमा कराया, तो आप अलग हो, दैट मीन्स यू. अच्छा, मैं आप इसलिए बोलती हूँ क्योंकि always we make sure that you assume yourself you are the business. आप कभी भी जब अकाउंटेंसी का जब भी काम करोगे या whenever we record, always remember that assume yourself that you are the business. तो जब मैं बोलती हूँ आपने ये किया, it means I'm talking about that company, I'm talking about that business. So if you are depositing, say you are depositing the money into the bank, तो वन एंटिटी और वन क्या बोलना चाहिए उसको, वन इज यू, दैट इज योर ऑर्गेनाइजेशन, एंड अनदर वन इज द बैंक. ऐसे ही जैसे आपने रॉ मटेरियल खरीदा, आपने फैब्रिक लिया कहीं से, तो कहीं से तो लिया होगा, सब XYZ और ABC लिमिटेड, कहीं से आपने फैब्रिक लिया. तो एक है आपकी कंपनी और दूसरी है वो आउटसाइडर. या आपके पास में कस्टमर्स आते हैं, कस्टमर इज एन आउटसाइडर एंड यू आर द कंपनी. तो कभी भी जब इवेंट ऐसे होती है, जब ट्रांजैक्शंस इज बिटवीन यू एंड समबडी हु इज एन आउटसाइडर, उनको बोलते हैं एक्सटर्नल इवेंट्स. आई विल जस्ट स्टॉप शेयरिंग. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बोलती रहूं, पता चला कि आप लोग सो गए हो. तो अब मुझे बता दो कि जितना मैंने अभी बोला है वो समझ में आया है या नहीं. यस मैम, आया. ठीक है, और कोई बोले? यस मैम. अभी ऐसा कुछ हाई फंडा हमने बात भी नहीं किया, सिंपल सी बातें की हैं. ठीक है, यस मैम, आ गया समझ में. ओके, वेरी गुड, वेल डन. सो आई विल टेक यू बैक टू द स्क्रीन नाउ. ओके, सेकेंड वन वाज द आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन. ये हमारे डेफिनेशन में था. दिस इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग. अब ये चारों का अलग मीनिंग है. Now, what do you mean by identification? एक सेकेंड रुको, I'll stop the invitation. Okay. आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है, सबसे पहली चीज जैसे मैंने बोला कि हम बुक्स में जब लिखते हैं कुछ भी,
तो इट हैज टू बी समथिंग विच कैन बी रिकॉर्डेड, ठीक है, जो कि इकोनॉमिक इवेंट है। अच्छा, इकोनॉमिक इवेंट जब हम बोलते हैं ना, इकोनॉमिक्स का वैसे मतलब कुछ और है, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे इट विल बी हैविंग अ डिफरेंट मीनिंग, बट एज अ लेमैन्स लैंग्वेज इकोनॉमी जब हम बोलते हैं ना, इट इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद योर मनी, ठीक है, इसीलिए हमने उनको नाम दिया है इकोनॉमिक इवेंट्स। ओके, तो आइडेंटिफिकेशन के अंदर आता है देयर आर सर्टेन थिंग्स, और कुछ चीजें आपकी बिजनेस में जो होती हैं वो इकोनॉमिक इवेंट्स नहीं है, ठीक है। जैसे एक मैं आपको दो एग्जांपल देती हूँ, दो तीन चीजें बोलती हूँ, आप मुझे ये बताना कि इसमें से कौन सा इकोनॉमिक इवेंट है, कौन सा नहीं है। Suppose one is you have bought fabric from XY Limited, ये एक है। दूसरा है you have taken an interview of a manager, okay। तीसरा है I have sold a shirt to a customer। इसमें से कोई ऐसा है जो कि इकोनॉमिक इवेंट नहीं है, या ऑल थ्री ऑफ देम आर एन इकोनॉमिक इवेंट? आई रिपीट, यू हैव बॉट फैब्रिक फ्रॉम नहीं। XY लिमिटेड, दूसरा यू हैव टेकन एन इंटरव्यू ऑफ द मैनेजर, थर्ड वाज यू सोल्ड अ शर्ट टू अ कस्टमर। ये तीन इवेंट्स मैंने बोला है। ऑल थ्री आर इकोनॉमिक इवेंट अकॉर्डिंग टू यू? No, No, ma'am. ma'am. Which No, one is ma'am. not? And second one. Interview one. The second one. Interview. Very good. क्योंकि इंटरव्यू जब आप ले रहे हो तो उसमें मनी का कुछ भी नहीं है, आप लिख ही नहीं सकते, आप कैसे लिखोगे? Yes, ma'am. लेकिन when that manager is appointed and you are paying him salary, then it will become an economic event. So very good बच्चों, के तुम्हें समझ में आ गया। So identification में हम क्या करते हैं? We will see only those events which can be quantified, which means which can be converted into money. तो आप identify करो कि whether it is to be recorded or not. Okay. Second comes your, हाँ बेटा। मैम जस्ट अ थिंग, जो ये डोनेशन वगैरह जाते हैं तो हाँ, इनको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये तो नहीं सोशल record। सर्विस में आ गया। No, 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 no. But ultimately, it is leading to money. It is recorded. ओके ओके। It is always recorded. Anything which is related with money, it has to be recorded. जो आप छुपाने की बात कर रहे हो ना, वो तो फिर अलग ही सीन है। मतलब as far as accounting is concerned, anything which leads to monetary benefits or monetary terms, it has to be recorded. ठीक है? तो second आता है measurement. अब Okay. हमने ये identify तो कर लिया क्या record करना है और क्या नहीं करना है। Another important thing is it has to be quantified. Quantified मतलब it has to be converted into money. जैसा कि मैं एग्जांपल दे रही थी आपको कि मेरे पास 10 कंप्यूटर्स हैं, 10 लैपटॉप्स हैं, ठीक है, मेरे स्टॉक में। सॉरी, मेरा एक लैपटॉप है से 25,000 का है, 25,000 का मैंने एक लैपटॉप खरीदा है, ठीक है। तो जब मैं अकाउंट्स में लिखूंगी, आई कैन नॉट राइट आई हैव गॉट 10 कंप्यूटर्स, इट हैज नो मीनिंग। We will not be writing as the physical units, we have to write in monetary units. तो मैं जब लिखूंगी तो मैं उसको लिखूंगी 10 कंप्यूटर 10 लैपटॉप्स हुआ कितने का, अगर एक 25,000 का है तो 10 will be 2,50,000. okay, so I will write I have a stock of 2,50,000, which means जो भी मुझे लिखना है that need to be quantified, it need to be converted or measured in terms of money. Clear? फिर आता है आपका रिकॉर्डिंग। अब जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं, ऐसे नहीं कि जैसे आपने देखा ना, हमें बहुत बच्चे नोटबुक्स नहीं लेकर आते हैं। आप स्कूल में हर एक चीज की, हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग नोटबुक होती है, लेकिन कुछ बच्चे हैं पूरा साल उनके पास सिर्फ एक ही नोटबुक होती है, वो सब कुछ उसी में लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अकाउंट्स में ऐसा नहीं चलेगा। देयर इज अ डेफिनेट रूल्स ऑफ राइटिंग। आप हर चीज अपनी मर्जी से, आज मैंने यहाँ लिख दिया, अच्छा मैं 2 दिन पहले का कोई इवेंट भूल गया था, ट्रांजैक्शन भूल गया था, तो मैंने आज लिख लिया। नो, इट कैन नॉट बी डन। देयर इज अ डेफिनेट वे ऑफ राइटिंग। और यहाँ पे एक वर्ड मैंने ये यूज किया हुआ है, क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है एनीथिंग विच इज इन द सीक्वेंस ऑफ इट्स हैपनिंग, कि अगर आज वो चीज हुई है तो मैं आज लिखूंगी,
उसके बाद कल हुआ तो कल लिखूंगी। ऐसा नहीं है जो 10 दिन के पहले हुआ था वो मैं आज लिख रही हूँ, नो, इट हैज टू बी आज हुआ तो आज, कल हुआ तो कल, परसों हुआ तो परसों। इट हैज टू बी सीक्वेंशियली और डेट वाइज, date wise it has to be written. So all the records should be done, first and foremost it has to be in the chronological order. दूसरा according to the practices, मतलब जो आपके rules हैं। आप जो बच्चों ने कॉमर्स लिया तो obviously I think you will be aware of certain words your senior must be speaking about, debit and credit। तो कुछ एक rules हैं, वो rule को follow करते हुए आपको वो recording करना है, you will be writing। And the last one is the communication. कम्युनिकेशन का मतलब होता है किसी को भी कुछ बताना, यू आर इन्फॉर्मिंग देम समथिंग। तो अभी जो भी आपने एक साल भर जो आपने रिकॉर्ड बनाए हैं, बोला ना 1 साल के बाद में हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। वो स्टेटमेंट बेसिकली बनाई जाती हैं आपको प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो आपने फाइनल रिकॉर्ड्स बना लिए, अब वो बना के क्या आप अपने तक रखोगे? जैसे अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट ये काम कर रहा है तो अपने आप अपने तक नहीं रखेगा, अल्टीमेटली ही नीड टू इन्फॉर्म दिस टू द मैनेजर और द टॉप ऑफिशियल्स और मे बी द ओनर ऑफ द कंपनी कि भाई देखो इतना इतना और अभी इतना प्रॉफिट हुआ है या इतना लॉस हुआ है, जो भी है। तो उसका भी एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है, जो भी आप रिकॉर्डिंग करते हो, जो भी आप फॉर्मेट्स बनाते हो, फाइनल रिकॉर्ड्स जो बनाते हैं उसके लिए भी एक फॉर्मेट होता है। यू हैव टू प्रिपेयर दैट फॉर्मेट, और ये जो इन्फॉर्मिंग मतलब यू हैव टू गिव दिस इंफॉर्मेशन टू द मैनेजर्स और द अदर पीपल हु मे बी नीडिंग दिस इंफॉर्मेशन। तो ये एक और पॉइंट था उसमें, इंटरेस्टेड यूजर करके एक लिखा हुआ था आपकी डेफिनेशन में। आइदर टू द मैनेजमेंट इट शुड बी इन्फॉर्म और टू द अदर पीपल whoever is interested in your business, they might have to take certain important decision। चलो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे सपोज शेयर होल्डर्स हैं, आई थिंक यू मस्ट बी अवेयर ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स आर द पीपल हु आर इन्वेस्टिंग अ लिटिल मनी इन देयर इन सम बिजनेस, ठीक है। मैं अभी बिल्कुल शॉर्ट में बता रही हूँ आपको। तो अगर मैंने सपोज कोई कंपनी में मैंने इन्वेस्ट करना है और मैं ये देख रही हूँ कि वो कंपनी लॉस ही बनाई जा रही है फॉर द लास्ट 2 years, और मे बी इट्स नॉट डूइंग वेरी वेल, और मे बी देयर प्रॉफिट्स आर गोइंग डाउन। फर्स्ट ईयर उनका 10% प्रॉफिट था, अभी 8% हो गया, नाउ इट इज गॉन डाउन टू 5%। सो डू यू थिंक आई विल टेक द डिसीजन ऑफ इन्वेस्टिंग? नो। तो इस तरह का जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है विच इज रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट, या जैसे कोई कंपनी का मैं एज अ कस्टमर में देखती हूँ कि इनकी जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है it has gone down, so why should I continue to buy the same product? I may take a decision to switch to something else। मैं पहले सपोज मैं लक्स सोप यूज करती थी, अभी मुझे लगता है वो बिल्कुल बेकार हो गया है तो आई मूव टू डव, और नहीं तो डव यूज करती थी आई विल। तो these kind of decisions these users will take after getting the information from the, ठीक है। सो आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, मतलब आप आइडेंटिफाई करो क्या रिकॉर्ड करना है क्या नहीं, मेजर करो, उसको मनी टर्म्स में कन्वर्ट करो, उसके बाद जो प्रैक्टिसेस हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स यू विल बी राइटिंग, एंड फाइनली यू मेक द फाइनल अकाउंट्स टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस। फिर है आपका ऑर्गेनाइजेशन, एक वर्ड था वो तो शायद मेरे ख्याल से आपको सबको पता होगा कि व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन। हाउ विल यू डिफाइन दैट? कोई बोल सकता है? ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत कॉमन सा वर्ड है भाई। मैम ऑर्गेनाइजेशन इज अ वी कैन से सेट्स ऑफ लेवल होते हैं जो कि सर्टेन वर्क को हम कहेंगे, अगर बिजनेस भी कहेंगे तो उसको करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जो साथ में रह के काम करते हैं। That is an organization. Okay. Anybody else wants to add something? चलो टाइम कम है, मैं आई वांट टू फिनिश विद दिस, ठीक है। जो लक्ष्य आपने बोला हियर राइट नाउ, दैट ऑर्गेनाइजेशन विच यू अंडरस्टूड इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जब हम ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस, जो भी बिजनेस हम चला रहे हैं तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। बेसिकली अगर आप मतलब अदर देन अकाउंटेंसी अगर आप बोलोगे
तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल. ऑर्गेनाइजेशन कोई बिल्डिंग नहीं है एक्चुअली. यहाँ पे तो इसका मतलब है जो भी बिजनेस है हम जो बात कर रहे हैं, इट रेफर्स टू एन एंटरप्राइज विद द प्रॉफिट और नॉट प्रॉफिट. कोई और ऐसी जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको भी हम बोलते हैं ना एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है ना. तो Yes, ma'am. ऑर्गेनाइजेशन इट कैन बी प्रॉफिट मेकिंग, मतलब बिजनेस भी हो सकती है और अदरवाइज भी हो सकती है. बट बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल. दे विल बी हैविंग वन कॉमन गोल. For that they come together, they pool in their resources. जैसे कि आपने शायद नाइन्थ में एक चैप्टर है इकोनॉमिक्स में, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपने पढ़ा होगा. लैंड, Yes, लेबर, ma'am. कैपिटल Yes, ma'am. एंड एंटरप्राइज. ठीक है ना. तो दोज आर द रिसोर्सेज. अगर आप बिजनेस की बात करते हो तो यू नीड ऑल दोज रिसोर्सेज. एंड व्हाट इज द कॉमन गोल फॉर बिजनेस? इट इज टू मेक द प्रॉफिट. तो ग्रुप ऑफ पीपल मतलब मैनेजमेंट, कस्टमर्स, बैंक और जो आपके एम्प्लॉइज हैं, everybody is coming to one place and they are pooling in their resources and common to achieve the common goal. Common goal is to make the profit. So organization basically here means is the business we are talking about. And the last one is the interested users. ठीक है. एक word है जो हम use करते हैं, that is called as stakeholder. Or don't mix with the shareholders. Shareholder is a different word. Shareholders are actually the investors of the business. वो कंपनी में पैसा लगाते हैं, शेयर्स खरीदते हैं. And one more thing I'll tell you, shareholders basically the owner of the company. जो भी आप इन्वेस्ट करता है, जो शेयर्स खरीदता है, they are the owners of the company. लेकिन यहाँ पे I'm talking about the stakeholder. Stake का मतलब होता है little interest. ठीक है. तो stakeholder anybody, any one person or it can be an organization who is having direct or indirect relation or interest in the business. जैसे फॉर एग्जाम्पल कस्टमर्स. वैसे सोचोगे तो आपको लगेगा कि why customers will be interested in business. लेकिन जैसा मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बोला था, सपोज द कंपनीज प्रोडक्ट, उसकी जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है. तो why should I continue and why should I show my brand loyalty? तो I may switch to something else. ऐसे ही जो बैंक्स है, सपोज उन्होंने कंपनी को लोन दिया है तो उनका इंटरेस्ट इसमें है कि भाई हमारा लोन वापस आ जाए और हमें इंटरेस्ट वापस मिल जाए. जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं या टैक्स अथॉरिटीज हैं, दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस बिकॉज अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट बनाएगी तो उनको टैक्स मिलेगा. ठीक है. जो मैनेजमेंट है वो इंटरेस्टेड है क्योंकि अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो मैनेजमेंट मतलब जो ओनर्स हैं वो उनको निकाल देंगे. एम्प्लॉइज हैं, अगर कंपनी अच्छा काम कर रही है तो दे विल गेट बोनस, दे विल गेट द सैलरी इंक्रीमेंट. तो देर आर पीपल हु आर हैविंग डायरेक्ट, मे बी बहुत छोटा सा इंटरेस्ट हो सकता है, बट आइदर दे हैव अ डायरेक्ट इंटरेस्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट. एवरीबडी इज कॉल्ड एज स्टेक होल्डर. एंड शेयर होल्ड मतलब स्टेक होल्डर जो है वो वाइडर टर्म है which applies to everybody. Shareholder is just one of the stakeholders. क्योंकि वो जो shareholders are those people who are investing the money in the business. ठीक है. Again, just like the economic event, there may be two types of stakeholders or interested users: internal users and external users. Now you can make out with that only. Internal means somebody who is inside the business. तो जैसे जो आपके employees हैं, supervisors हैं, manager है, it may be CEO, vice president है, ये सब लोग हैं जो within the business they have a direct interest क्योंकि उनकी salary वहीं से आती है. If business is not doing well, business might close and they will lose the job. So they get the job security, they get the payment. So these are the people who are inside the business. They will be internal user, and everybody else will be an external user. That is the outsider, like आपके investor